Good morning, everyone. Welcome to your first class of IT subject, that is information technology. In today's class, obviously, we will start with lesson number 1, that is the parts of computer. But before going to the parts of a computer, there is a topic that is functions of a computer. We will do that only, and before that we will also understand that what is the use of computer, why, where can we use, where can we see the computer, the uses of computer, why there is so much computer in our surrounding. This computer word we always hear every day in life. So we will do that, and then we will try to understand what are the functions of computer, that what functions does it do. Simple, just like us, we human speak, we human eat, we human listen, hear, we human see the world. Similarly, what computer can do, we will do that also. We will start with why computer. ठीक है, कंप्यूटर क्यों, कंप्यूटर इतना हमारे लिए, हम क्यों इतना वर्ड सुनते हैं. सबसे पहले आप ये पिक्चर्स देख रहे हो, देयर आर सो मेनी कार्टून्स एंड द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दीज कार्टून्स दैट दे मूव ऑल्सो. आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो क्या वो मूव कर पाती है? नहीं कर पाती है. नाउ दीज कार्टून्स आर ऑल्सो द ड्राइंग्स, बट दे कैन मूव. वाई? Because of the computer. So computer, see how computer is useful to us, or this is for our entertainment. Coming to next thing, can you see this doctor looking at the computer, and computer में आप जो है images देख सकते हो body के parts की. So this is again a use of computer in the hospitals. Again here you can see the students, they are doing something in the computer. You must also have done something in schools on computer, so it means there is a use of computer in the schools also. Now, and in school, not only just for the students, it's for other purposes also, making tests, making worksheets. We use the computer for those. Here you can see a person wearing the spaceship dress. So in space research also computer is useful. Without computer we will not be able to reach to other planets, such as those surprising planets, moons, etc. Coming to the next use, that is here you can also see the computer in the airport. And similarly there are so many other places, bank ho gaya, police station ho gaya, there are even every place, offices ho gaye, every place has the computer. Without computers in nowadays we can't just survive. नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर. अभी कंप्यूटर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं आपको वो ध्यान से सुनना है पहले. यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर के 4 फंक्शंस होते हैं, दैट इज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. ठीक है, ये 4 फंक्शंस होते हैं, बहुत ध्यान से सुनोगे आप. इनपुट जो फंक्शन होता है, दैट मीन्स, इन मीन्स अंदर. ठीक है, इनपुट का मतलब है कि हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं. वो कैसे डालते हैं, तो इसका मतलब है, और हम इंफॉर्मेशन अंदर दे रही है, अंदर डाल. सो इसका मतलब कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट कर रहा है. सो इनपुट बेसिकली द प्रोसेस एक्सेप्ट्स डेटा गिवन बाय द यूज़र. यूज़र मीन्स हम यूज़र हैं, हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एंड हम कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं, एंड कंप्यूटर एक्सेप्ट्स इट. दिस इज कॉल्ड इनपुट. ठीक है, अब हम क्या क्या डेटा दे सकते हैं, हम कीबोर्ड के थ्रू के प्रेस करते हैं, एल प्रेस करते हैं, दीज आर द लेटर्स. ठीक है, तो हम कोई वर्ड्स इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या फिर हम किसी पेन ड्राइव के थ्रू कंप्यूटर को कोई सॉन्ग दे रहे हैं, या कोई पिक्चर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो भी कंप्यूटर एक्सेप्ट कर रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स, जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे वो साउंड है, म्यूज़िक है, पिक्चर है, कोई नंबर है, कोई भी वर्ड है, ऑल दीज आर कॉल्ड डेटा. ये ध्यान रखना है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इसको डेटा बोला जाता है. ठीक है, अब हम आते हैं प्रोसेसिंग पे.
प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, वर्क्स ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। जब इनपुट हो जाता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेता है हमसे कि ओके हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दी एंड कंप्यूटर ने वो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा। जस्ट लाइक कि मैं अगर आपको कोई क्वेश्चंस करने के लिए देती हूँ तो आप उस पर वर्क करना शुरू कर देते हो, सिमिलरली कंप्यूटर भी उस पर वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स कोई काम, कोई वर्क। तो प्रोसेसिंग मीन्स वर्क्स ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस मीन्स हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि हमें उस सॉन्ग को, अगर बाई चांस हमें पिक्चर को कंप्यूटर में सेव करना है तो हम उस तरीके से कमांड देंगे, हम राइट क्लिक करते हैं, वहाँ पे सेव क्लिक करते हैं, तो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि कंप्यूटर आपको ये चीज़ करनी है, तो कंप्यूटर फिर वो काम करता है। जस्ट लाइक कि अगर टीचर आपको कोई क्वेश्चन करने के लिए बोलता है तो टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन दी तो आप उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स लिखते हो। सिमिलरली कंप्यूटर भी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही अपना काम करता है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड फंक्शन, दैट इज द आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्या होता है, इट गिव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। कंप्यूटर ने एक्सेप्ट कर लिया इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को, उस पर प्रोसेस भी कर लिया, उस पर काम भी कर लिया। अब उसके बाद वो हमें रिजल्ट भी तो देगा। आपको जब कोई क्वेश्चन करने के लिए बोला जाता है तो आप सॉल्व करके अपने पास थोड़ी रखते हो, हमें भेज देते हो ना, टीचर को दे देते हो। सिमिलरली कंप्यूटर भी हमें उस पर काम कर कर हमें वापस भेज देता है। दिस इज कॉल्ड आउटपुट। आउट मीन्स वो बाहर की तरफ भेज देता है, हमने कंप्यूटर इनसाइड लेता है एंड उस पर काम करके यानी कि प्रोसेसिंग करके उसको आउट कर देता है, यानी कि बाहर भेज देता है। जस्ट लाइक कि डिस्प्ले पर वो चीज़ हमें नज़र आ जाती है, वो पिक्चर हमें वहाँ डेस्कटॉप पे नज़र आ जाती है, या वो साउंड हमें सुनने को मिल जाती है। दिस इज़ आउट, क्योंकि वो साउंड बाहर निकल कर आ रही है, वो पिक्चर हमें बाहर की तरफ दिख रही है, शो हो रही है। सो ऑल दीज आर दी आउटपुट, ठीक है। कमिंग टू द फोर्थ फंक्शन, दैट इज द स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन क्या होता है, कंप्यूटर जो है अपने अंदर, जैसे हमारा ब्रेन जो है उसके अंदर भी बहुत एबिलिटी होती है चीज़ों को स्टोर करने की। जस्ट लाइक कि इफ़ वी रिमेंबर आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स नेम, सो इट मीन्स दैट नेम इज स्टोर्ड इन माई ब्रेन। सिमिलरली कंप्यूटर के पास भी एक ब्रेन होता है जिसके अंदर वो अपनी सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है, जो जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, सो दैट कंप्यूटर उस चीज़ को भूले नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्टोरेज, स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ठीक है। अब ये जो स्टोरेज इज डिफरेंट थिंग कि सिर्फ उसको एक जगह पे हमने रख दिया है, संभाल के रख दिया है, लेकिन ये जो 3 थिंग्स होती हैं ये कहीं ना कहीं एक साइकिल में काम करती हैं। पहले इनपुट आया, देन उस पर प्रोसेसिंग हुई, फिर कंप्यूटर ने हमें आउटपुट भी दिया, तो ये तीनों मिलकर एक साइकिल बनाते हैं जिसको बोलते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इन शॉर्ट IPO साइकिल, ठीक है। Now so this IPO cycle is very important to understand. So this how computer can be also can have IPO cycle, but what ये कंप्यूटर के अंदर जो IPO साइकिल है वो किससे इंस्पायर्ड है। हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स होते हैं जहाँ पे हमारे IPO साइकिल चलता है। इट इज़ जस्ट लाइक मेकिंग अ टी। टी कैसे बनेगा, इनपुट में क्या होगा, टी इनपुट का मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा वाटर, मिल्क, टी लीव्स, शुगर, ठीक है। हमने ये सारा ले लिया है, इन कर लिया है, ठीक है, किचन के अंदर। ये हो गया इनपुट। प्रोसेस क्या होगा, इनको हम बॉईल करेंगे सबको एक साथ, ठीक है, ये ऐसे ही टी बनती है, हमने इनको बॉईल कर दिया। दिस इज़ द प्रोसेस, कुछ काम हो रहा है, वर्क हो रहा है कुछ, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, हमें टी मिल जाती है, प्रिपेयर्ड टी, सो दिस इज़ आवर आउटपुट। सो बेसिकली दिस इज a simple IPO cycle, IPO input process of output cycle, ठीक है। सिमिलरली वी कैन टेक सम अदर एग्जाम्पल, मेकिंग अ टेलीफोन कॉल। जब आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो तो कैसे प्रोसेसिंग जाती है, आप इनपुट क्या करते हो, फ़ोन के अंदर आप नंबर्स डायल करते हो, ठीक है।
फाइंड करते हो नंबर्स को, दैट इज़ द इनपुट, बिकॉज वो जो है आपका फ़ोन एक्सेप्ट करता है। फ़ोन इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर, ठीक है, जो हमारे पास आजकल स्मार्टफोन्स हैं दोज आर कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर का वो सारा काम करते हैं, ठीक है। तो आप उस पर नंबर्स फाइंड करते हो, उसको डायल करते हो। सेकेंड थिंग में क्या होता है फिर आपके पास, प्रोसेस कनेक्टिंग द नंबर। प्रोसेस क्या होगा, आपने डायल तो कर दिया, लेकिन जब तक फ़ोन वाले जो नेटवर्क वाले लोग हैं वो उसको हमारे फ्रेंड के नंबर से कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे फ्रेंड तक तो वो कॉल जा नहीं पाएगी। सो दिस इज़ कॉल्ड द कनेक्टिंग द नंबर, ठीक है, उस नंबर को कनेक्ट किया जाता है। कमिंग टू द आउटपुट, आउटपुट क्या होता है, टॉकिंग टू योर फ्रेंड। एंड जब वो कनेक्ट हो जाता है तो आपको क्या आउटपुट मिलता है उससे, कि आप अपने फ्रेंड से बात कर पाते हो। सो सिमिलरली देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ IPO साइकिल। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, ये IPO साइकिल ही है कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए, ठीक है, अब आपने उस पर काम करना शुरू किया, यानी कि आंसर्स लिखने शुरू किए, दैट इज़ द प्रोसेस, ठीक है। फिर उस काम करने के बाद आपको मैंने रिजल्ट दिया, मार्क्स दिए मैंने आपको उसको चेक करके, सो दैट इज़ द आउटपुट। सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ IPO cycle. So for today we will do only these things, and according to this you will attempt your worksheet on online test.